میں میرے ساتھ اس وقت جو تشریف فرما ہیں وہ ہیں سید محمد معراج صاحب، جو صدر ہیں آل پاکستان پینشنرز ایسوسی ایشن راولپنڈی اسلام آباد کے۔ سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا شکایات ہیں اور یہ کیا مطالبات ہیں جو گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ معراج صاحب، آپ بتائیے کہ جس طرح سے یہ پینشنرز کا مسئلہ ہے یہ کافی لمبے عرصے سے چل رہا ہے، اور پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں سن 2024 کی، تو تب بھی اکتوبر کے مہینے میں بھی اس طرح کے مسائل نے سر اٹھایا تھا اور اس پر بھی آپ لوگوں نے اس طرح پہ احتجاج ہوئے تھے اور آپ لوگ تمام اپنے ساتھیوں کی آواز بنے تھے اور آپ نے اس بارے میں بتایا تھا ہمیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا آپ کی حکومت سے مطالبات ہیں اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو حکومت تسلیم نہیں کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں کوہ نور چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مظلوم پینشنرز کی آواز بنے اور حکام بالا تک آواز پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کو ایک تاریخی کامیابی ملی، افواج پاکستان نے جس دلیرانہ انداز سے دشمن کو جواب دیا اور اس کے نتیجے میں پوری قوم کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا، میں تمام افواج پاکستان کو بالخصوص فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سب کے ہیرو ہیں مشترکہ طور پر، اور اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو مزید تقویت عطا فرمائے۔ اب میں اصل مسائل کی طرف آتا ہوں، پینشنرز کی طرف سے۔ پینشنرز ایک یہ سمجھ لیں کہ اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے۔ سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں وہ الاؤنسز وغیرہ کے ذریعے، بونسز وغیرہ کے ذریعے اور دیگر ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو مراعات ملتی رہتی ہیں دوران سروس، لیکن پینشنرز ایک واحد ایسا طبقہ ہے جو صرف پینشن پر توقع کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پینشن تو مل رہی ہے، لیکن دن بدن جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ تو کئی سو گنا بڑھ چکی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حکام بالا اس طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ ہم نے ایک اپنی زندگی کے بہترین لمحات گورنمنٹ میں خدمت کرتے ہوئے، قوم کی خدمت کرتے ہوئے صرف کیے۔ اس کے نتیجے میں جب ہم 60 سال کے ہوتے ہیں اور ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو میری وزیر اعظم صاحب سے، صدر پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ خدا را ہمارے مسائل کی طرف بھی توجہ دیں اور جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پر ایک نظر تو ڈال لیں، دیکھیں تو صحیح ہم کس طرح گزار رہے ہیں۔ پینشن اتنی قلیل ہوتی ہے کہ ابھی 15 تاریخ نہیں آتی کہ اس سے پہلے پینشن فارغ ہو جاتی ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، بلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ہوش روبہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ بجلی کے بل دیکھیں، گیس کے بل دیکھیں، تمام یوٹیلیٹی بل جتنے بھی ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہماری پینشن ہی پوری کر دے تو بڑی بات ہے۔ اب پینشن جو ہوتی ہے وہ پینشنرز کا ایک بہت بڑا سہارا ہوتی ہے باعزت اور زندگی گزارنے کا، لیکن ہم سے یہ بھی حق چھینا جا رہا ہے۔ سنا ہے کہ ہم پر بھی کوئی کٹوتی لگائی جا رہی ہے، ہمارے اس پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی۔ مہنگائی کے تناسب سے اس کو بڑھایا نہیں جاتا؟ نہیں، مہنگائی تو 300-400 گنا بڑھ چکی ہے، لیکن ہماری بمشکل 10%، 15%، اس سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ یہ ایک لمحہ فکری ہے۔ ہاں، اگر اپنی وزراء کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک جھٹکے میں اپنی تنخواہوں کو 200%، 300% بڑھا لیتے ہیں، لیکن ہماری جب باری آتی ہے تو خزانہ خالی ہوتا ہے، یا پھر کوئی IMF کا عذر پیش کر دیا جاتا ہے کہ IMF کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ IMF صرف غریبوں کو کہتا ہے کہ ان سے ٹیکس وصول کریں، ان کے اوپر کٹ لگائیں، ان کو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اپنی عیاشیاں جو انہوں نے کرتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں سارا، اب اس کو گنوا کے فائدہ نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ عیاشیوں کے ساتھ زندگی تعیش زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ تو میری یہی اپیل ہے کہ خدا را اس دفعہ پینشن میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ ہم باعزت طور پر زندگی گزار سکیں۔ لیکن خبروں سے کچھ اس طرح کی باتیں سننے میں مل رہی ہیں کہ اس مرتبہ پینشن میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اگر کیا بھی جائے گا تو بہت کم کیا جائے گا۔
دیکھیں یہ باتیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اسی طرح کی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی اس میں صداقت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ذات پہ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان کے دلوں میں اللہ پاک رحم ڈالے گا اور وہ پینشنرز کا بھی خیال کریں گے. اور اگر ایسا نہ کیا, انہوں نے ہمارا خیال نہ کیا, تو ہم آپ کو بخدا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی بھی داؤں پہ لگا دیں گے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اب جان دے دیں گے اگر انہوں نے ہماری طرف خیال نہیں کیا. پہلے بھی ہم نے احتجاج کر کے دکھایا, ہم نہ گرفتاری سے ڈرتے ہیں نہ مار پیٹ سے ڈرتے ہیں. ہم نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو نقص امن میں آتا ہو. یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کے ایک ایک پتے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ایجیٹیشن کرنے کا, لیکن ہم جائز حق کے لیے اپنی آواز بلند کرنے کا حق ضرور رکھتے ہیں, اور یہی ہم حق آج آپ کے توسط سے حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں کہ خدا را ہماری طرف دیکھا جائے, ہماری داد رسی کی جائے اور ہماری مشکلات کو حل کیا جائے. میرے ساتھ ابھی اور بہت سے یہاں پر پینشنر حضرات میرے سینئر بیٹھے ہیں, ابھی وہ آپ کے سامنے 1 بائی 1 اپنے بیانات میں پیش کریں گے, تو اس میں آپ کو اور واضح ہو جائے گا. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میڈیکل فیسلٹیز جو بالکل ایک نہ ہونے کے برابر ہے وہ پینشنرز کو دی جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کرائے کی مد میں ریلوے ہو یا بائی ایئر ٹکٹ کا ہو, اس میں بھی بہت قلیل ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے. آپ میڈیکل الاؤنس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو صرف سرکاری اسپتالوں تک آپ کو محدود رکھا گیا یا پرائیویٹ آپ علاج کروا سکتے ہیں؟ جی نہیں, ہم پرائیویٹ نہیں کر سکتے, ہمیں صرف پرائیویٹ سرکاری تک رکھا گیا ہے محدود. میری یہی درخواست ہے کہ اس کو بڑھایا جائے اور پرائیویٹ تک بھی رسائی ہماری کی جائے, کیونکہ دوائیاں جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لینی پڑتی ہیں وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اور جو ہمارے دسترس سے باہر ہیں, تو اس میں بھی خدا را غور کریں اور ہمیں کوئی میڈیکل کی سہولت پرائیویٹ طور پر بھی ہمیں پینل پر جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, شفا ہاسپٹل ہے اور بڑے ہاسپٹل ہیں, کلثوم ہے, اس طرح کے بڑے ہاسپٹلس کے اندر ہمیں رسائی دی جائے. جی ناظرین, میرے ساتھ اب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر چودھری صغیر عالم صاحب, جو چیئرمین پاکستان پینشنر ویلفیئر ایسوسی ایشن ہیں. ان سے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیں مزید کیا تفصیل بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے اور لیو انکیشمنٹ کے قواعد ہیں, ان میں کیا تبدیلی کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. یہ ریٹائرمنٹ پر جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کو پینشن ملتی ہے مختلف ریٹ کے حساب سے. اس کے ساتھ میں پہلے اس کی وضاحت کرتا ہوں. انکیشمنٹ صرف پنجاب میں ختم ہوئی ہے, باقی کسی صوبے نے نہ مرکز نے ختم کی ہے. اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایک چھٹی, جو ٹیچنگ سٹاف ہے ووکیشنل ڈپارٹمنٹ, ان کی ایک چھٹی پر منتھ ہوتی ہے, جبکہ دیگر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی 4 چھٹیاں ہوتی ہیں پر منتھ. ان کی 48 بنتی ہیں ایک سال میں, ہماری 12 بنتی ہیں. وہ چھٹیاں جمع کر کے ہم ایک سال, اپنے 30 سال کی عمر میں ہماری چھٹی بنتی ہے 360 دن. ٹھیک ہے, وہ ختم کر دی گئی ہے. اب انہوں نے کہا جی 15 مہینے پہلے اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو ہم LPR دیں گے. جب LPR ملے, سینکشن ہوگی جی, تو اس کے بعد وہ پوسٹ ابالش ہو جائے گی. کوئی نیا بندہ بھرتی نہیں ہو سکتا, اور وہ بھی انیشل پر دیں گے. انکیشمنٹ ہمیں نہیں ملے گی, وہ LPR کی جو ہماری طریقہ کار ہے اس کی وہ تنخواہ ملے گی. یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہم پورے سروس میں 30 سال ہم پوری سروس کرتے ہیں, ایک چھٹی بھی نہ لیں, تب ہماری 360 دن چھٹیاں بنتی ہیں. وہ ہمیں, جبکہ دیگر ڈپارٹمنٹ, بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو دوران سروس وہ جو چھٹی ہوتی ہے کیش کرا لیتے ہیں, چھٹی کی تنخواہ لے لیتے ہیں درمیان میں ہی, وہ آخر میں جاتے ہی نہیں. ہماری تو آخر میں جاتی ہے 360 دن, وہ بھی ختم کر دی انہوں نے, اور یہ صرف پنجاب میں ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں دیگر جو پینشن کی جو بات ہوئی ہے وہ پنجاب کا ٹرگا چکا ہے. ابھی جو معراج صاحب نے کہا ہے, انہوں نے مرکز کے حوالے سے باتیں کی ہیں, لیکن مرکز تو اب کرنے جا رہا ہے, پنجاب یہ سب کچھ کر چکا ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ جو اگر سرکاری ملازم فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو 10 سال پینشن ملے گی, اس کے بعد وہ جائے جہنم میں جو مرضی کرے, اس کو کچھ نہیں ملے. وہ کدھر جائے گی؟ وہ اس نے ڈاکے مارنے ہیں, یا اس عمر میں وہ ڈاکے مارے گی, کیا کرے گی وہ؟ اس کی ختم ہوگی. اس کے علاوہ قانون قدرت ہے کہ 10% بچے جو انتہائی ذہین پیدا ہوتے ہیں, وہ کدھر ہوتے ہیں؟ وہ رائل فیملی میں ہوتے ہیں, بڑے گھروں میں ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو بچے 10% یا 15% ہوتے ہیں وہ معذور بھی ہوتے ہیں. اب معذور بچوں کی پینشن ختم کر دیجیے. بیوہ کی پینشن 10 سال ہے, معذور بچوں کی ختم ہے, بیٹیوں کی ختم ہے. اگر کوئی ڈائیورس بیٹی آ جاتی ہے, اطلاق یافتہ یا ان میرڈ بیٹی یا معذور بیٹی, اس کو پینشن نہیں ملے گی, صرف بیوہ کو 10 سال ملے گی. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا, صرف پنجاب میں ہوا ہے.
باقی ابھی مرکز میں بھی معراج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، لیکن یہ پنجاب کر چکا ہے 2 دسمبر 2024 سے 2024 سے ہو چکا ہے، یہ عمل درآمد ہو رہا ہے، انکیشمنٹ بھی ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایکس آئی پی ہمیں ملتی تھی 2011 کی، وہ ہماری ختم ہو گئی ہے 2015 کی۔ یہ ایکس آئی پی کیا ہے؟ سابق انکریز ان پینشن جو انکریز ہوتی ہے سالانہ 10%، یہ وہ ہماری 11 کی ختم ہو گئی ہے، 15 کی ختم ہو گئی ہے، 22 کی ختم ہو گئی ہے، 23 24 سب ختم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں کمیوٹیشن دے رہے ہیں وہ 25% ہے۔ پھر یہ سندھ میں اس سے قبل 2 سال یا 3 سال ہو گئے، سندھ میں پہلے انہوں نے کہا کہ ایوریج پینشن، ایوریج مین یہ ہے کہ آخری 3 سال کی تنخواہ وہ ایوریج کر کے اس کے بعد وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اتنی آپ کی پینشن ملے گی، اتنی آپ کی کمیوٹیشن ہوگی۔ جبکہ پنجاب میں اس سے قبل یہ رول تھا کہ نوشنل بیس پر سال کے کسی حصے میں اگر کوئی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے آفٹر 31 مئی، اس کو کمنگ دسمبر کی انکریمنٹ جمع کر کے اس کی پینشن کیلکولیٹ۔ اب انہوں نے کہا جی کہ پیچھے جائیں، وہ نیشنل بیس پر بھی ختم ہوگی اور ایک انکریمنٹ درمیان میں آ کر اس کی پینشن کی وہ کیلکولیشن ہوگی۔ اتنا بڑا ظلم ہے۔ پیسے اس کے کتنے ملے؟ پہلے 40 لاکھ ملتے تھے، اب اس کو 10 لاکھ ملیں گے۔ 10 لاکھ میں کیا ملتا ہے؟ ایک فٹ جگہ بھی نہیں ملتی۔ اب پنڈی اسلام آباد کی پراپرٹی دیکھ لیں، فٹوں میں چلی گئی ہے، کروڑوں میں چلی گئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کدھر جائے گا؟ اس نے ڈاکے مارنا ہے یا اس نے مرنا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں انسان کو پیدا کرتا ہوں، پیدائش کے بعد اس کو نکمی عمر میں بھیج دیتا ہوں۔ نکمی عمر ہماری یہ ہے کہ ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے، ہمارے میں طاقت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، کہ ہم سرکاری ملازمین ہم نے زندگی کی کریم اپنے اپنے محکمہ جات میں خرچ کی ہے۔ ہم تو کام کرتے رہے، جو نہیں کرتے ان کو تو پوچھتا ہی کیوں نہیں ہے، وہ اپنے پوری کیلکولیشن کر کے وہ صاف کر لیتے ہیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں وہی مارے گئے ہیں۔ تو یہ معاملات ہوئے پنجاب میں، جو مرکز اب کرنے جا رہا ہے وہ پنجاب کر چکا ہے۔ اب گورنمنٹ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں خدا کا خوف کریں کہ آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے یہاں ہی آنا ہے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، سب کی چرپائی یہاں ہی آئے گی، اس کے بعد اگلا اسٹیشن ہماری قبر ہے۔ تو اس قبر کو یاد کریں کہ سب نے جانا ہے۔ بڑے بڑے یہاں آئے ہیں، جو ماں دیکھ لیں کہ کتنے کو 70 سال ہو گئے ہیں، ہر آنے والا پہلے سے اس کا ابا نکلا تب جا کے اس نے حکومت چلائی، اور اس نے کیا کیا؟ وہ پینشنر کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج پینشنر بوجھ ہیں، اور ہمارے ارکان اسمبلی 300% ان کی تنخواہیں بڑھائی جا چکی ہیں، جبکہ جو ہے وہ پینشنر بوجھ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اللہ کی وہ آزمائش میں یا جس میں بھی ہیں، تو وہ تو ارکان اسمبلی کی انہیں 300% تنخواہیں بڑھا لی ہیں۔ اب مزید میں نے سنا ہے کہ مرکز والے یہ کر رہے ہیں کہ افراط زر کے ساتھ سے، افراط زر 3 سال کا لگائے گا، اگلے 3 سال کا، پچھلے کا نہیں۔ کل کیا ہوگا ہمیں کوئی نہیں پتا۔ وہ غالباً 13 کچھ ہم نے رکھا ہے کہ یہ افراط زر آئے گا، یہ 3 سال ہم یہ اضافہ کریں گے، 2% کریں یا 3% کریں یا 10% کریں، وہ 3 سال یہی لیتے رہیں گے۔ 3 سال کی مہنگائی کا اندازہ کر لینا، مہنگائی دن بدن آسمان پر جا رہی ہے، ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے حالات ایسے ہیں۔ تو میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور پنشنر کا خیال کریں۔ یہ آپ کے مہمان ہیں، یہ آپ کے والدین کی جگہ ہے، یہ آپ سے بڑے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کی عزت ہیں، آپ کے لیے باعث برکت ہیں۔ ان کا خیال کریں، ان کے حقوق کا خیال کریں۔ اور بالخصوص میں پنجاب کی حکومت کے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو معذور جن کی آپ نے پینشن ختم کی، میں خود بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ان بچوں کے لیے میں اڈیالہ جیل میں ایک آدمی پولیس والا فوت ہو گیا، اس کا بچہ معذور تھا، سارا دن بیچارہ وہ گلیوں میں پڑا رہتا تھا، کوئی اس کو پانی بھی نہیں دیتا تھا۔ میں اس کے لیے وہاں گیا، اڈیالہ جیل کے اندر سے دستخط کرائے اور اس بچے کی پینشن دلائی، پھر اس بچے کو کسی نے روٹی دی، اس کے ماں باپ بھی یا اور کچھ جو رشتہ دار ہیں وہ بھی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ہمارا تو نہیں، ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ہم وہ پیدا ہوں آسم منیر کی طرح ہم بھی پیدا ہوں، لیکن اللہ کو نہیں منظور ہے، ہمیں اللہ نے نیچے رکھا گیا، ہماری اوقات اس طرح ہے۔ تو میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی خاطر، اللہ کے نظام کی خاطر آپ کچھ خیال کریں کہ پینشنر آپ کے مہمان ہیں، یہ چند دن ہے، 1 سال ہے، کتنا ہے کہ کچھ نہیں پتا۔
नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही है और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि पेंशनर्स कितने मुश्किलात का शिकार हैं और इनके हुकूमत से ये मुतालबात हैं कि इनको रिलीफ फराहम किया जाए, इनकी पेंशन्स में इजाफा किया जाए ताकि ये भी अपनी जिंदगियों को आसानी से गुजार सकें। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। रहमान। पहले तो मैं कोनूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पेंशनर मुलाजमीन का सारा मामलात के लिए ये कदम उठाया। बाकी मैं I9 का रहायशी हूँ, जहाँ रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। यहाँ 1400 फ्लैट हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन के हैं, उसमें कोई एक भी दूसरा नहीं है, सारे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं। हर मुलाजम 30 से 40 साल तक गवर्नमेंट को सर्विस देकर आता है और जिस वक्त रिटायर होता है, आपको पता है, सबको पता है कि उस वक्त वो कोई काम करने के और दूसरा काम तो कर नहीं सकता, एक पेंशन के ऊपर होता है। लेकिन हमारी हुकूमतें ऐसे जैसे पेंशन में इस्लाहात करने जा रही हैं, पंजाब में कर दी हुई है, हम पंजाब में जो किया उसकी भी मजम्मत करते हैं, भाई ये बहुत गलत किया है कि, और जहां जो करने जा रहे हैं उसका भी हम बिल्कुल उसमें एहतजाज भी करेंगे और इसमें बिल्कुल इसका इस्लाहत करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये देखें, इतने साल सर्विस देकर अगर पेंशन को आखिर में ये 2009 के पैसे जमा कराए हुए गवर्नमेंट, ये प्लॉट्स के सिलसिले में आपने जमा करवाए थे, वो अभी तक उसमें वो किसी को प्लॉट नहीं दिया गया। किसी को अगर मिल गया तो वो उसी पोजीशन में है, कोई उस पे मकान नहीं बना सकता, उसकी अभी कोई चीज भी तैयार नहीं है, प्लॉट नंबर दे दिया लेकिन अभी काम कुछ भी नहीं वहां हुआ। कम से कम इन्हें इतना चाहिए कि जिस वक्त आदमी रिटायर होता है उस वक्त उसकी 35-40 साल सर्विस देकर आया होता है, एक गवर्नमेंट का मकान दिया जाए, जगह दी जाए उस पे। चलो अब रिटायर जिस वक्त होता है आदमी उस वक्त सोचता है, ये मैं यहाँ रहता हूँ, ये इसमें मैं यकीन से कह सकता हूँ, आप लोग देखें कि हम एक चीज मजाक में कहते थे, ये 69 और 60 बहुत मुश्किल होता है ये गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए। वो किस वजह से, भी रिटायर होने वाला है, किसी बच्चों की शादी करनी है, आगे मकान नहीं है, शादी अलाउंस वगैरह, ये शादी के लिए अलाउंस वगैरह देते हैं आप? शादी के अलाउंस एक 50,000 रुपया है एक शादी पे, जिंदगी में एक बच्चे पे, जिसके 6-7 बच्चे हैं वो दोबारा बस सोया रहे, सिर्फ एक दफा 50,000। अब बाकी ये CDA है या दूसरे महकमे है वो 4-4, 5-5 बच्चों को, हर बच्चे को 2-2 लाख रुपया देते हैं, ये सिर्फ 50,000 रुपए है। और उस वक्त आदमी सोचता है जिस वक्त रिटायरमेंट के नजदीक गया होता है, जहाँ रिटायरमेंट हो गई होती है, कि मैंने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों के कोई आगे घर जाना बनाना है, कोई यहाँ जिसमें कोई शिफ्ट हो सकूं, और इन चीजों के सोचों में वो BP भी बढ़ जाता है, शुगर भी हो जाती है, ये सारी चीजें टेंशन से होती हैं। वो बेचारा इन सोचो विचार में ये चीज गुजर जाती है। तो ये मजीद और इस वक्त जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को टेंशन देने के में तुली हुई है, और इसी तरह गवर्नमेंट मुलाजमीन और ये पेंशनर दोनों के साथ एक ही तरह। हमने ये 14 तारीख को गवर्नमेंट के साथ अपनी फौज के साथ बहुत भरपूर तरीके से उनके साथ यकजहती की, जिसमें हमारे पेंशनर हज़रात इसमें सारे बैठे हैं, बहुत सारे इस्लामाबाद, पिंडी, पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे, और इसी तरह सेक्रेटेरिएट के सारे मुलाजमीन, यानी कि फेडरल के तो सारे मुलाजमीन बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। तो इसमें हमें बहुत फख्र हुआ कि हमारी फौज ने भरपूर दुश्मन का जवाब दिया। उसमें पहले भी बात हो चुकी है और ये हर एक को पता है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो हम इसका फौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कम अज कम ये हमारे पे रहम किया जाए। ये जो IMF सिर्फ हमारे पे ही लागू होती है। ये अभी पिछले दिनों रात के अंधेरे में छुट्टी वाले दिन किसी को 200% बढ़ गई और किसी को 250% बढ़ गई। ये खुद जिस वक्त जल चाहता है अपनी बढ़ा लेते हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट मुलाजमीन का जो पेंशनर है, ये इनके लिए अगर बढ़ाते भी हैं तो 7%, अगर दूसरों की भी अगर 15% बढ़ाई तो इनकी 7.5% कर दो।
यार ये भी रोटी खाते हैं, जिन्होंने भी पेट पालना है, इनके मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए आप लोगों के साथ। साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अगर कि जिस वक्त आगे पहले मैं बात कर चुका हूँ, कोई मकान का दिया जाए और मकान मीन प्लाट दिया जाए, चले वो बनाए खुद ही, लेकिन एक चीज हो भी, प्लेटफॉर्म उसको बना हुआ है, एक प्लाट है भी, यहाँ भी वहां वो घर बना सकता है। आज रिटायर हुआ है पेंशन, अगर अब तो जो सिलसिले शुरू हुए वो पेंशन मिलती में जो है कम्युनिटी और ये वो सारी चीजें वो मिलते मिलते साल लगा देते हैं। ये हमारे सादिक साहब अभी हुए हैं, इस बारे में मजीद अभी बता सकते हैं। मेरे तो 2 दोस्त पंजाब से हुए हैं, वो बेचारे 4-4 साल 3-3 साल हो गए हैं, अभी तक भी बीच में कुछ लटके हुए हैं। नहीं तो 1.5 साल तो बहुत सारों को हो गया ना। इसी तरह कम अज कम जिस वक्त रिटायरमेंट हो, फौरन उसकी सारे लवाजमा, सारे उसके जितने अखराजात हैं, जो कुछ है, कम्युनिटी है, हाउस रेंट है, जो कुछ है, वो सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ अब एक और पेंशनर मौजूद हैं, शाह फारूक साहब। इनसे भी हम जानते हैं कि ये हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि क्या ये जो आप लोग रिटायर हुए हैं, तो आपके बच्चों में से किसी को मुलाजमत पे रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा? मेरे बहुत बहुत शुक्रिया कोहिनूर टीवी का कि हमारे पहले भी आप लोग आए थे और अभी भी हमारा लोगों ने पूछ लिया। मेरे कुछ बच्चे मुलाजिम हो गए, लेकिन वो मेरिट पे हुए, गवर्नमेंट ने कोई इसने सर्विस नहीं दी है जी। और वो मेरिट पे हुए, गवर्नमेंट ने इसी तरह, बल्कि अब तो सारा जो कुछ था वो खत्म कर दिया, कानून उन्होंने खत्म कर दिया कि बच्चे को जो मुलाजिमत मिलती थी वो अब इन्होंने खत्म कर दिया। और उनके इरादे और भी बुरे हैं, न जाने उनके मुलाजिमीन का या जो रिटायर हो रहे हैं उनका क्या अशर नशर करेंगे। और साथ साथ यही है कि सबको पता है कि बहुत महंगाई हो गई है और 300-400% महंगाई हो गई है। और ये 15% या 10% जो है ना मुलाजिमीन की या इस तरह पेंशन की एक जैसे इजाफा कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है। जो जैसे हमारे एक दोस्त ने कहा कि 15 या 20 तारीख पहुंचा, लेकिन मैं तो 7-8 तारीख तक पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैं जो बंदा रिटायरमेंट हो जाए 2 साल बाद वो जरूर बीमार होता है। जैसे मैं खुद 10-12 हज़ार रुपए का जो है ना मेडिसिन खा रहा हूँ। तो ये चाहिए इनको कि पेंशन में भी इजाफा करे, तो तनख्वाहों में भी इजाफा करे, ताकि ये लोग अच्छा वक्त भी गुजार सके। और साथ ही जैसे ये कानून पहले था और ख़त्म कर रहे और ख़त्म भी कर दिया है, तो बच्चे को भी मुलाजिम रख दे और इसी तरह हुकूमत ये जो ना इंसाफी छोड़ दे और इनके साथ करे। जिस तरह हमारे सारे दोस्तों ने, अमजद साहब ने या दीगर साथियों ने जो बातें की है, उससे मेरा भी इत्तेफाक है कि पेंशन में इजाफा किया जाए। ये जो 10-15 इजाफा है ये कुछ भी नहीं है, 100%। इसके अलावा ये जो फिर मर्जिंग होते 12 साल उन्होंने रखा है, तो हमारा मुतालबा ये है कि ये 65 साल में करे, यानी 5 साल कर दिया जाए, ताकि जो है कुछ सुख का सांस ले ले रिटायरमेंट। इसमें कम कर दिए जाए, 7 साल कम किया जाए, 65 साल कर दिया जाए। 65 साल रिटायरमेंट जिस बंदे के पूरे हो जाए उसके जो है ना पेंशन बहाल किया जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राना मोहम्मद सादिक साहब, जो कि मेंबर कोर कमेटी हैं फेडरल सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज और अगीगा पाकिस्तान के। इनसे हम जानते हैं कि ये हुकूमत के सामने अपने क्या मुतालबात रखेंगे। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी प्रोग्राम के शुरू में बात हो रही थी मेडिकल अलाउंस के बारे में, कि मेडिकल अलाउंस आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, और उसके साथ साथ ये है कि आप लोगों को सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक महदूद रखा जा रहा है और प्राइवेट इलाज आप लोग नहीं करवा सकते, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके बाद पाकिस्तान अफवाज और चीफ साहब का नहायत शुक्रगुजार हूं, जिसकी वजह से आज हमारे सर फखर से बुलंद हुए। अच्छा, जैसा कि आपने इंट्रो में सब कुछ बयान कर दिया, हम 4-5 साल से इसी जद्दोजहद में लगे हैं, चाहे वो पेंशनर है, चाहे वो हादर सर्विस मुलाजमीन है, इन्हीं की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से तकरीबन 42 ईयर सर्विस करके आज मैं रिटायर, मुझे 1-1.5 महीना भी हुआ मुझे रिटायर्ड हुआ। मैंने सारी उम्र यही काम किया है, 42 ईयर्स मैंने सारी ये भलाई के काम किए हैं। लेकिन जो मैंने रिटायर्ड मुलाजमीन की हालात ज़रा देखी है, मैंने कहीं आप भी जाके इनके फ्लैट्स में आप इनके बच्चों से मिलें, आप इनकी बीवियों से मिलें, जाके आपको खुद ही रोना आ जाएगा कि इनकी हालात ज़रा कितनी मुश्किल से ये बेचारे लोग ये गुजारा कर रहे हैं। जहाँ ये जो गवर्नमेंट ने अभी नए से नए अभी जो पेंशन रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, वो इससे भी गंदा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। बार बार ये IMF का जिक्र करते हैं, IMF ने कहीं भी इनको ये नहीं कहा कि ये कर दो या ये कर दो। अभी उसमें जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, इस पे इम्पैक्ट कितना आ रहा है ये भी मैं बता देता हूँ कि एम्प्लॉयज कितने हैं। लेकिन हमारी 5 साल की जद्दोजहद जिसको रहमान अली बाजवा साहब लीड कर रहे हैं, पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। हमारी तकरीबन 14 तारीख थी, 14 तारीख को जो लास्ट हुई है,
14 तारीख को हमारी जो लास्ट मीटिंग राना सनाउल्लाह की कमेटी के चेयरमैन है राना सनाउल्लाह साहब और तारिक फजल चौधरी साहब हैं, मैं खुद उसमें मौजूद था, रहमान अली बाजवा साहब थे, आल पाकिस्तान के तमाम मेंबर उसमें शामिल थे। सारों के सामने जब ये कमिटमेंट हुई है, हमने धरना भी दिया, उस पर धरना में हमारे पास रिटर्न में भी है। अभी हमें इंश्योरेंस यही दी जा रही है कि इन बजट हमने आपकी प्रपोजल सारी पुटअप कर दी है, लेकिन मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है इनसे। लेकिन बाजवा साहब तो पर उम्मीद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेंशन का जिक्र वहां पे भी हो। एम्प्लॉइज का तो हमने इनका 30% करके दिया हुआ, हमें अश्योर किया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया है, दूसरे मिनिस्टर से भी किया है, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं श्योर कि जैसे आपने इंटरव्यू में भी बता दिया, दूसरे भाई ने भी बता दिया कि उसमें पेंशन का नाम नहीं है। लेकिन आज मैं आपके चैनल पे एक पे देख रहा था, किसी एक चैनल पे मैं देख रहा था जिसमें इन्होंने जिक्र भी किया है कि उसमें जिक्र है गवर्नमेंट सर्वेंट का। ये हमारी प्रपोजल है जिसको लीड कर रहे हैं रहमान अली बाजवा साहब। रहमान अली बाजवा टच है इनसे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से टच है, और इंशाल्लाह इनको हम करवा के देंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला दोबारा हम आगे धरना देंगे, पार्लियामेंट के आगे धरना देंगे, जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, जब तक हमने वहां से उठना नहीं है। क्योंकि सेक्रेटरीट का कोर कमेटी का सीनियर मेंबर मैं हूं, फेडरल सेक्रेटरीट मेरे पास है, वहां से करता धरता मैं हूं। मैं अपने छोटे मुलाजमीन को एक्चुअली देखें 17 एंड अबव कोई इशू नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। हमारा जो इशू आ रहा है, जितना इशू आ रहा है 1 to 16 आ रहा है, जितना इशू 1 to 16 है ये सारा। अब इनकी हालात जार को सही करने के लिए हमने इनके लिए इतनी फाइट की है कि वो हमारी फाइट धरी की धरी रह जाती है। चाहे वो पीएम पैकेज वाले बच्चे हैं, चाहे वो डेली वेजेस वाले बच्चे हैं, चाहे वो रेगुलर बच्चे हैं, अब किसी की भी बेचारे का कोई काम नहीं हो रहा। आपने स्टार्ट में पूछा था पीएम पैकेज का, पूछा पीएम पैकेज के हमने जो बच्चे पहले इन्होंने भर्ती किए थे, हमने वो सारे के सारे रेगुलराइज कराए। उसके बाद क्या ऑर्डर आए हैं जी, नहीं आप भर्ती कर ही नहीं सकते हो। अब अगर एक बंदा इतनी मैं हूं, मैंने 42 ईयर सर्विस की है, अगर लास्ट ईयर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या इतना राइट नहीं गवर्नमेंट का बनता है कि मैंने 42 ईयर्स मैंने सर्विस कर ली है, तो मेरा इतना राइट नहीं बनता कि किसी मेरी बच्ची को या बच्चे को रिटेन कर लें? क्यों कि इनके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, इनके पास तो एक सरकारी मकान है जिसके लिए ये मरते हैं बेचारे। आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के एक बंदे ने सुसाइड किया वहां पे, किस लिए किया था? सिर्फ इस फ्लाइट के लिए किया था उसने, वहां पे सुसाइड किया, मेरे सामने किया, मैं खुद नीचे खड़ा हुआ था। अब आप इनकी हालात, मैं अभी बात कर रहा हूं तो मुझे खुद रोना आ रहा है उस पे। मेरे बच्चे 1 से 16 तक, मैं उनकी फाइट मैंने सारी उम्र लड़ी है, चाहे वो क्लास 4 है, चाहे वो क्लरिकल तबका है, मैंने इतनी फाइट लड़ी और मैंने इतना कुछ देखा ना अपनी आंखों के सामने। मैं खुद मिनिस्टरों से मिला हूँ, बाजवा साहब के साथ हम इकट्ठे ही मिलते हैं, हम इकट्ठे ही मुलाकात करते हैं सारे के सारे, चाहे वो बाजवा साहब है, चाहे वो आल पाकिस्तान से आते हैं, वो भाई मेरे पंजाब से आए हुए हैं, मुझे पता है इनके हालात जार क्या है। जहाँ पे आपने पेंशन का जिक्र किया, जहाँ आपने ग्रेजुएटी का जिक्र किया, जहाँ पे आपने लीव इनकैशमेंट का जिक्र किया, अभी हमसे कमिट करके बैठे हुए लीव इनकैशमेंट इनकी। मरीम नवाज साहब से हमारी मुलाकात हुई, राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे से कमिट किया कि इंशाल्लाह हम इसको रिस्टोर करेंगे, लेकिन ताहाल अभी तक कोई चीज इसमें नहीं हुई, अभी तक कुछ रिस्टोर नहीं किया गया इसमें। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं और पूछते हैं इनसे कन्वेंस अलाउंस के बारे में, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम इशू है। कन्वेंस अलाउंस के बारे में बताएं, उसमें कोई आपको कोई रिलीफ मिल रहा है, कोई आपकी हेल्प की जा रही है कि नहीं? जी बिल्कुल भी, अभी तक तो कोई भी ऐसी है इन्होंने हमें रिलीफ नहीं दी है। हमारी जितनी प्रपोजल्स अभी हमने सबमिट की हैं उसमें मेडिकल और कन्वेंस भी दोनों चीजें शामिल हैं। अब अगर आप कन्वेंस में भी देखते हैं, जैसे मैंने आपको मेडिकल का बताया था ना कि बड़ी कलील सी अमाउंट देते हैं, इसी तरह इसमें कन्वेंस में भी छोटी सी अमाउंट है, 1000, 1500, 2000 है, 116 तक की, 2500 है किसी को, ये ऐसा ही है। यहाँ अफसरान की 17-18 में मैं था, मेरी 5000 थी। तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि 42 साल के बाद, 42 साल मैंने नौकरी की तो मुझे 5000 कन्वेंस मिलता था। अब मेरे छोटे भाई जो बेचारे वहां पे 1 से 16 तक कर रहे हैं, उसके किसी का 1500 है, किसी का 2000 है। आप मुझे ये किराया दे के बताएं कि आप यहाँ से पिंडी तक भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? यहाँ ये आप हमें आगे से ये कह देते हैं कि जी आपके लिए मेट्रो चला दी है, और मेट्रो आए दिन यहाँ पे बंद रहती है, मुझे आज इमरजेंसी पड़ जाती है तो मैं काहे पे जाऊंगा? अभी अगर मैं बाइकें भी यहाँ से करा के जाता हूँ, बाइके वाले ने मेरे 500 रुपया ले लेना मुझसे, तो वो तो मेरे महीने का जो कन्वेंस है वो तो मेरा एक दिन में लग जाएगा। तो इसमें हमने वो किए भी हैं, हमें श्योर तो किया है इसमें, देखिए अभी इंशाल्लाह ताला बजट में होता क्या है, हम वेट कर रहे हैं इसका कि इसमें करते हैं कि नहीं करते। नहीं तो हम जस्ट बाजवा साहब ने सीधा कह गया है उनको कि हम
धरने पे आएंगे लोग। जी नाज़रीन, हमारे साथ अब मौजूद हैं राजा औरंगजेब धनियाल साहब, जो कि साबिक सदर अगीगा पंजाब, मरकजी चेयरमैन पंजाब टीचर्स यूनियन हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। एक्चुअली मेरे सीनियर डॉक्टर चौधरी सी आलम साहब बहुत सी बातें पंजाब के हवाले से कर चुके हैं, तारुफ आपने करवा दी है। मैं थोड़ी सी इसमें इजाफा कर दूं कि हमने 2020 में आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलाइंस बनाया था, जो 2021, 22, 23 तक जो है वो मैं उसका पंजाब का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और रहमान अली बाजवा साहब जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ हमारी एफिलिएशन पहले भी थी, अब भी है। रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि पेंशनर और अदर सर्विस का अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो अगर सालाना पे में 50% इजाफा होता है तो पेंशनर के हालात को मद्देनजर रखते हुए उनमें उनकी पेंशन में 70% इजाफा होना चाहिए। जबकि यहाँ ये दस्तूर चल पड़ा है कि जो अदर सर्वर्स हैं उनको 20% उनमें इजाफा किया जाए और जो रिटायर हैं उनको 7% या 10% दिया जाए। स्वतंत्र ज़रीफी की इंतहा है कि हमारे पंजाब में जो पेंशन इस्लाहात के नाम से जो ये एवरेज वाला फार्मूला जो जारी किया गया है, या जो हमारी कम्युनिटेशन जो है वो 35% से डाउन करके 25% पर ले आए हैं, यानी कि जुल्म की इंतहा है। और सबसे बड़ा जुल्म, बाकी चीजों का जिक्र तो किया है तो डॉक्टर साहब ने, एक चीज जो उनसे रह गई जिसकी वजह से मैंने टाइम लिया, कि जो हमारे मुलाजमीन की पंजाब में इन सर्विस डेथ होती है और वो हमारा इन सर्विस डेथ की सूरत में उनका कोई ना कोई एक पीछे फैमिली का जो एक फर्द है उसको जो है वो उसकी जगह जो है वो सर्विस पर लगाया जाता था और उसके फैमिली के घर के जो है वो मामलात चलते थे, वो भी खत्म कर दी गई। तो हमारा फाइनली मुतालबा ये है कि एक तो पंजाब ये जो हमारे ओवरऑल जितने भी बजट में पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में जितना अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो जितना अदर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज्यादा करते हैं उसके बराबर तो करें। और दूसरा एक जुल्म की इंतहा है कि आया जो पेंशनर लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको ये मेडिकल फैसिलिटीज की ज्यादा जरूरत है या जवान लोगों को ज्यादा जरूरत है। और वो स्वतंत्र ज़रीफी की इंतहा ये है कि लास्ट टाइम जो आखिरी रिवाइज मेडिकल अलाउंस जो मिल रहा है वो है 2015 में। 2015 के बाद हमारा मेडिकल अलाउंस जो है वो रिवाइज नहीं हुआ। यानी ये इतने बड़े मसाइल जो है वो हमारे ऊपर हैं। तो हमें इंशाल्लाह ताला चीफ कोऑर्डिनेटर रहमान अली बाजवा के साथ हमारी एफिलिएशन है। मेरा तलक बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से है। हम जायज मुतालबात हैं हमारा किसी ना हम सियासी हैं, हम गैर सियासी लोग हैं। और बजट में अगर हमारे ये जायज मुतालबात ना माने गए तो हम बूढ़े लोग हैं, घर बार से वैसे भी फारोग हैं। हम जैसे मिराज साहब ने कहा है इंशाल्लाह इनकी सरबराही में जैसे पहले लेटते थे इस तरह से सड़कों पर लेट जाएंगे। वहाँ अगर जो है हमारी डेथ हो जाती है जो भी है वो जिम्मेदारी। जी, मेरे साथ अब मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड नईमुद्दीन खालिद साहब, जो मरकजी सदर हैं ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन के। सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने यहाँ पर प्रोग्राम के शुरू से लेकर अब तक हमने काफी लोगों से बात की और सबसे हमने बेसिकली ये जाना कि उनके क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट से और वो किस किस्म के मसाइल का शिकार हैं। लेकिन अगर हम इसकी इन डेप्थ डिटेल में जाना चाहें और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये जो पेंशनर का निज़ाम है इसका कंपैरिजन अगर हम करें पाकिस्तान से का अदर कंट्रीज के साथ, के जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर पेंशनर्स का क्या सिस्टम है और पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, और इन दोनों चीजों में अगर हम देखें तो बेहतरी किस तरफ है, तो आप हमें इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। सलामुन अलैकुम। मैं सबसे पहले कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वाकई मीडिया की दुनिया में पेंशनर के लिए कोहिनूर ही हैं। पिछले साल भी आप लोगों ने हमारे मुतालबात जो थे अवाम तक और फिर हुकूमत तक पहुँचाए, उसका उन पर क्या असर हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब पेंशन बढ़ती है तो हमें उस वक्त एहसास होता है कि वाकई हुकूमत हमारा सुन लेती है। अभी बजट जो है उसका ड्राफ्ट बन रहा है
اور بجٹ کا مجھے پتا ہے کہ آخری پیج ہے, اس میں 2-3 لائنیں ان میں لکھا ہوگا کہ یہ پینشنرز کے لیے ہم نے یہ بینیفٹ کیے. اچھا, پینشنر کے 2 طبقے ہیں, ایک فیڈرل ہے جس میں ہماری ڈیفینس فورسز بھی آتی ہیں اور فیڈرل کے سارے ملازمین آتے ہیں, ایک صوبائی ہے. صوبائی کا اور ہمارا آپس میں ذرا ڈفرینس ہے آئین کے مطابق. صوبے ان کا آئین بناتے ہیں, جیسے پنجاب کی پینشن ختم کر دی ہے جو ان کو بیواؤں وغیرہ کو ملتی تھی, یا کچھ کمی کر دی ہے. دکھ ہوا ہے سن کر. جب ہم دنیا کے باقی ملکوں سے موازنہ کرتے ہیں, ہر جگہ پینشن کا قانون ہے, ہمیں یہ تو قانون برٹش سے ملا ہے نا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر کا قول یاد ہوگا کہ جی آپ کی تنخواہ کیا مقرر کی جائے, جتنے ایک غریب کی تنخواہ ہوتی ہے میری مقرر کی جائے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے حضرت ابوبکر عام آدمی تھے, یہ وہ موجودہ وزیر اعظم سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے یہاں جو طبقہ ہے گریڈ 8 سے لے کر 16 تک اور 17 سے اوپر تک, ہر کے اپنے اپنے مسائل ہیں. کہتے ہیں جتنی زیادہ چادر ہوگی اتنا زیادہ اس کا دھونے پہ خرچہ آئے گا. اب ہم آتے ہیں پوری دنیا میں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہاں ایک لکھا ہے 75 سال کی عمر میں جو ہے زیادہ ہے کم کریے, 72 سال میں. اکتوبر میں میری عمر 72 سال ہو رہی ہے, میری پینشن ڈبل ہو جائے گی. جب میں باہر اپنے گئے ہوئے دوستوں سے مقابلہ کرتا ہوں جو ہماری فوج چھوڑ کر مختلف ملکوں میں چلے گئے, وہاں انہوں افسر نہیں بنے, وہ تو کوئی کلرک بنا, کوئی کچھ بنا. میرا خود ایک کورس میٹ ہے, وہ لائسنسنگ اتھارٹی میں کلرک تھا, وہ آ گیا پاکستان میں. آپ کو پتا اس کو پینشن کتنی ملتی ہے؟ $1000. اور مجھے کتنی ملتی ہے؟ $240. میری اب زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح جو وہاں جو ہمارے وہ دوست ہیں جن کے بچے جو اپاہج پیدا ہوئے ہیں, ان کو گورنمنٹ 100% دیکھ رہی ہے. ان کے لیے گھر بنائے, ان کے لیے جو ہے ملازمین رکھے گئے ہیں. اب وہ بچے جو ہیں ان نیچرلی اب 40 سال کے بچے ہو گئے نا, حکومت ان کو دیکھ رہی ہے, بالکل ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتا. لیکن ہمارے یہاں گورنمنٹ ایسی ہے کہ جو سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے 60 سال کے بعد, ان کی بات سنتے ہوئے ان کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں, شکن آتا ہے, غصے ہو جاتا ہے. اب سیدھی سی ایک بات ہے, اب ہم عمر کے اس دور میں ہیں کہ جب ہم اب دوائیوں پہ چل رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک سہارا اللہ ہے, دوسرا ہمیں پینشن ملتی ہے, اور تیسرے ہم دوائیوں پہ چل رہے ہیں, اور چوتھا اگر ہم واک کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے تو ہماری ہوتی ہے. لیکن یقین کریں کہ یہ دوائیاں جو ہمارے یہاں ملتی ہیں اور جو باہر کے لوگوں کو ملتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے خاص طور پہ اب میں فوجیوں کے معاملات بھی دیکھ رہا ہوں, ہمارے WNR اچھا کر رہی ہے فوجیوں کی. ڈیفینس فورسز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے طبقے بنا دیے ہیں گریڈ 8 سے لے کر 16 تک کے, اور ایک افسر کا طبقہ ہے اور ایک نیچے کا طبقہ ہے. اب وہ افسر بھی ہیں جو 20 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں اور ایک آج ریٹائر ہوئے ہیں, ان کی آپ پینشن کا دیکھ لیں فرق, زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ چلیں اگر فرض کریں کہ ان کی زیادہ تھی تو جو انڈیکسیشن کے تحت جو پینشن بڑھنی چاہیے تھی تو ہماری چلو اتنی نہ ہوتی تو ان کا 75% ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جب ہم ریٹائر ہوتے ہیں ہمیں تنخواہ سے 70% جو ہمیں پینشن ملتی ہے. اچھا, اب آپ لوگ یہ جس طرح سے سب کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو یہ 2 جون کو آپ لوگ دھرنا دینے جا رہے ہیں, تو اگر اس میں پھر آپ لوگ کیا پیش رفت کریں گے کہ وہاں پر بھی اگر انہوں نے آپ کی سنوائی نہ کی تو پھر آگے کا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ تو جی ہمارے جو مین عقیدت کے جو لیڈر ہیں رحمان علی باجوہ صاحب, یہ تو جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. ہم تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے جیسے بتایا کہ سڑکوں پہ لیٹ جاؤ تو ہم لیٹ جائیں گے. دیکھیں نا, ہم سب ایک ہے نا, ہم الگ تو نہیں ہیں, لیڈر ہمارا ایک ہے. وی آر ناٹ پولیٹکس انوالو ان دی پالیٹکس. ہم صرف اپنی تنخواہوں اور پینشن کے معاملے میں انوالو ہیں. جو ملازمین ہیں اگیگا پاکستان اور آل پاکستان پینشنر ایسوسیشن جو پاکستان کے پورے پینشنر کے مفادات کی نگران ہے, آپ یقین کریں کہ میں راتوں کو سوتا نہیں ہوں, موبائل پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, ان کے مختلف معاملات حل کرتا ہوں. یہاں ایک نے بتایا کہ میں تھانے میں جیل میں جا کے بیچارے معذور بچے کی پینشن ہم نے بڑھائی ہے. یہ سب ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہاں, ایسے کوئی نہیں کہ ہم پہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہے, ہم سب ایک جائیں, کیونکہ جب ہم پینشن ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ہم سب کے مفادات ایک ہو گئے ہیں. ہمیں ان سب کو دیکھنا ہے
जो आज जो मुलाजिम हैं, जो यहाँ 3-4 दोस्त हमारे थे, मेराज साहब थे, ये मुलाजिम था, और मुलाजिम में हर मशहूर इनका किरदार था मुलाजिमीन की रहनुमाई के लिए। अब वो जेल भी गए थे और अभी हमारे साथ आ गए। यानी पहले ये मेज के उस तरफ बैठे थे, तनख्वाह लेने वाले थे, अभी पेंशन लेने वाले। अब इनके जो मसाइल हैं वो उन सभी पेंशन की तरह हैं जो उनके मसाइल। तालीम के हवाले से कोई क्वालिफिकेशन इंक्रीमेंट वगैरह मिलता है? हाँ, जो तालीम, देखें एक चीज होती है ना, जो भर्ती के वक्त गवर्नमेंट कवायद मुकर्रर करती है मुख्तलिफ के, कि जी मैट्रिक है, FA बेस है या कोई क्वालिफिकेशन बेस है, और उस वक्त जो सारे आप एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उसी के मुताबिक आपसे गवर्नमेंट जो है बर्ताव करती है। उसमें जो है यहाँ तक की बात है तालीम का, जो बच्चा जो है तालीम करता है तो उससे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है कि जी वो इस शोबे से उसमें चला जाएगा, IT सीख लिया तो वो IT में चला जाएगा। और एक होती है वर्टिकल मोबिलिटी, मतलब है कि वो अगर ग्रेड 4-5 में भर्ती हुआ है तो उसको जंप लगा के ग्रेड 16 मिल जाएगा। ये है फेडरल में और सब जगह ये सहूलत मुहैया है, लेकिन ये सहूलत उनके लिए जो हिम्मत करते हैं काम करने वाले। लेकिन हमारे यहाँ देखें ना, हमारे जो तालीम का म्यार है उसके मुताबिक 70% हमारे जो मुलाजमीन हैं वो मैट्रिक क्वालिफाइड आते हैं, क्योंकि उनके घरेलू हालात होते हैं, तालीम मतलब पैसा नहीं होना, फिर स्कूल जो तालीम दी जाती है वो इतनी मतलब है नाकिस है कि जिसमें बच्चा कोई एक्सेल नहीं कर सकता। ठीक है ना, कोई एक्सेल करेगा तो वो इससे करेगा वो अपनी जाती मेहनत की वजह से, या वो ऐसे माशरे में चला जाएगा कि जहाँ दूसरे बच्चे पढ़ने वाले होंगे और ये बहुत कम है। इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए। देखिए बहुत स्कूल बने हुए हैं, बहुत सारी, अब गवर्नमेंट के स्कूलों को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, तो जो कम फीसों में जो लोग नहीं पढ़ सकते थे, मुझे बताएं ज्यादा फीसों में अब कैसे पढ़ेंगे बच्चे, वालिदैन कैसे अफोर्ड करेंगे? यहाँ सब बता रहे हैं हर मुलाजिम कम से कम 4 बच्चे, 4 से अगर ज्यादा हो जाए तो वो फीस सबिल्ला उनका है, तो कैसे अपने बच्चों को तालीम देंगे, कैसे उन मुकाम पर ले आएंगे? हुकूमत को चाहिए। देखिए हुकूमत अभी दानिशवर स्कूल बना रही है, ये किसकी दानिश ज्यादा कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों के या चंद सिलेक्टेड लोगों के? इसमें बोलना चाहिए आप लोगों को, इस प्रोग्राम को उठाना चाहिए, हुकूमत को कहना चाहिए कि तालीम सबके लिए आम करें, मुफ्त करें, मैट्रिक तक की तालीम लाजमी करें, हर बच्चा स्कूल लाजमी जाएगा, नहीं तो उसके वालिदैन को सजा दी जाएगी। उसकी वालिदैन, तालीम तो हमारे मुल्क का बहुत अहम इशू है और इस पर तो जितना काम किया जाए उतना कम है। जी बिल्कुल ठीक है। और मैं सबसे एक अहम बात बताना चाहता हूँ आपको, हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, कितने लोग इंग्लिश जानते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे पढ़ने आते थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, मैं पूछता था तुमने क्या पढ़ा है, इंग्लिश तुमने पढ़ के आए हो, नंबर लेके आए हो, 50-60 नहीं आए, तो बंदा खुदा आप इंग्लिश को हमारे सिलेबस से निकाल क्यों नहीं देते? चीनियों की तरह हम चीनी में क्यों नहीं पढ़ाते? मैं तो ये कहता हूँ कि पंजाबी, बलोची, सिंध में सिंधी शामिल है निसाब के अंदर, वो तरक्की नहीं कर सकते सिंधी पढ़ के, तो ये पंजाबी नहीं कर सकते, पठान नहीं कर सकते, बलोची नहीं कर सकते। इसलिए साहिब इख्तियार को सोचना चाहिए कि बच्चे को बुनियादी तालीम मदर टंग में दी जाए, और मदर टंग बच्चे की जो भी होगी उसके लिए आप टीचर मुहैया करेंगे। गांव में उसी की जबान के टीचर हो सकते हैं ना, आप लाहौर से तो वहाँ टीचर नहीं जाएंगे, लेकिन जब बच्चा जो अपने, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैं एक कोर्स कर रहा था, हमारे साथ एक फलस्तीनी तालिब इल्म आया था, वो नहीं कर रहा था, तो मुझे थोड़ी बहुत अरबी की शुरुआती मेरे साथ बिठा दिया, मैं बताया व्हाट इज योर प्रॉब्लम, उसने कहा आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। मैंने उसको एक दिया, उसने अरबी में लिखा, मैं वो लेकर गया अपने इंस्ट्रक्टर के पास, मैंने कहा सर ही इज वेरी गुड इन राइटिंग, आप इसका अरबी में टेस्ट लें। उसका अरबी में टेस्ट लिया गया, क्योंकि हमारे जो CI थे वो अरबी क्वालिफाइड थे, उसने 90% मार्क्स लिए। एंड आई वाज शॉक्ड कि जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हम लोग मुश्किल से 60% नंबर ले लेते, वो एक अरबी फलस्तीनी स्टूडेंट ने 90% मार्क्स लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पंजाबी पढ़ाएं, दे विल एक्सेल। आप हमारे चैनल के तवस्सुत से हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? ये जो इतना हमने डिटेल में सारा कुछ जाना और जिस तरह से आप लोग इतने परेशान हैं, पेंशनर्स जितने भी हम यहाँ पर तमाम अफराद बैठे हुए हैं, तो पेंशन के हवाले से और जो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल उनके हवाले से आपकी आवाज हमारे चैनल के तवस्सुत से सरकार तक जाए तो क्या कहेंगे आप? मैं वाहिद एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो दुख आपको होता है वो बाकियों को भी होता है, उसमें आप सांझ बन जाएं, आप अपनी
अल्लाह से बख्शवाने के लिए सदका भी देते होंगे, ज़कात भी देते होंगे, खैरात भी देते होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इतना पैसा जो मुख्तलिफ चीज़ों में लगा रही है, जो लोग ज़ाय कर रहे हैं, अभी लोगों ने ट्रांसपोर्ट पर कोई बात नहीं की कि जी सरकारी अफसर कितनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। एक सब्जी लाने के लिए आप देख लें, सुबह जाके कराची के इतवार बाजार के अंदर सरकारी गाड़ियां खड़ी हुई, सरकारी नंबर प्लेटों की थी। वो क्या लेने आया है? भिंडी लेने आया है, सब्जी लेने आया है। वो बंदा खुदा ये छोड़ दें, आप फौज की तरह एक मरकजी सब्जी खरीदने का अदारा बनाएं, वहाँ सब जाके लेकर आ जाएंगे। तो आप बुनियादी तौर पर लोगों का इसका ख्याल करें, आप अपनी तनख्वाहें कम करें, अपनी मुट्ठी भर आटे को आधा मुट्ठी कर दें और वो आधा मुट्ठी आप ग्रेड 8 से 3 के दरमियान तकसीम कर दें, चाहे वो पेंशनर हो या मुलाजमीन हो। ये इसीलिए तो हड़ताल कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? क्या वो देखते नहीं है कि मुलाजमीन का गुजारा नहीं हो रहा? अगर एक फेडरल के मुलाजमीन का गुजारा नहीं आता हो रहा तो मुझे बताएं सूबाई मुलाजिम किस खाते में आप डालेंगे? फिर गिला तो करेंगे ना, वो तो हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करेंगे। हमारी दुआएं जो नहीं कबूल हो रही हैं वो यही वजह है कि गरीबों की दुआ अल्लाह पहले सुनता है और उसके दरमियान में एक फिल्टर लगा देता है कि चलो जी अमीरों आपकी दुआएं नीचे, मैं गरीबों की सुनूंगा। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग उसके हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। अभी हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं चले हमारे जो पेंशनर हैं वो अभी इतने बागी नहीं हुए कि हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। अभी भी हुकूमत के सामने सर तस्लीम करते हैं कि आप हमारा ख्याल करें। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बातें सुनी और मेरी ये बातें आवाम तक पहुंचनी चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा इक्तिदार के ऐवानों में जानी चाहिए। क्यों कि जून ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद जो होगा उसकी सारी जिम्मेदार जो होगी, जो ऐवान में बैठे उनके लिए होगी। उनको तो पेंशन मिलेगी ना, उनको तो तनख्वाह मिल रही है। वो तो 4 साल के लिए आएंगे और पेंशन लेके चले जाएंगे अभी। तो वो जो 60 साल उम्र गुजार रहे हैं उनको भी सोचे ना कोई। शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने पेंशनर्स हजरात से बात की, हमने सरकारी मुलाजमीन से बात की और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इन्हें बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और ये लोग चाहते हैं कि इनकी पेंशन्स में और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, तो आने वाले बजट में यकीनन इसको कंसिडर करना चाहिए ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगियां आसानी के साथ गुजार सकें। जो बड़े अफसरान हैं उनकी मराद को कम किया जाए और उनकी मराद को कम करके वही चीजें, वही पैसे इनकी तनख्वाहों में और इनकी पेंशन्स में एडजस्ट किए जाएं, तो यकीनन हम इनके लिए भी आसानियां पैदा कर सकते हैं और आसानियों का मामला पैदा हो सकता है। तो हमारी हुकूमत को इस पर फिलफौर तवज्जो देनी चाहिए। अभी बजट नहीं आया है और अगर बजट आने से पहले इसमें इस्लाहात कर दी जाएं तो इनके लिए भी कुछ आसानियां पैदा हो जाएंगी। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कोहिनूर न्यूज़ ने हमेशा अवामी मसाइल के ऊपर बात की है और ये हमेशा से अवामी मसाइल की आवाज़ बना है और जितने भी अवाम को मसाइल दरकार होते हैं हमारे चैनल के तवस्सुत से गवर्नमेंट तक जाते हैं और फिर उनकी दादरसी की जाती है। हाल ही में अभी कुछ दिनों के अंदर 2025 और 26 का बजट आने वाला है और जब भी कोई बजट आता है तो सबसे ज़्यादा तशवीश हमारे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को दरकार होती हैं, क्योंकि वो इस सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि आया आने वाला बजट अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि क्या इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन्स में इजाफा किया जाएगा या नहीं। ये वो परेशानी है जो इन लोगों को हमेशा इनको सताती रहती है और ये इसके बारे में सोचते रहते हैं। फरवरी 2025 की बात की जाए तो उसमें उस वक्त अगीगा पाकिस्तान की तरफ से इस हवाले से एक धरना भी दिया गया था जिसमें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रखे गए थे और फिर हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसके लिए एक कमेटी बनाई थी और राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि वो इन मुतालबात को तस्लीम करेंगे और इसके ऊपर आगे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक इस पर कोई नज़रसानी नहीं की जा सकी है। और अब बजट भी आने वाला है तो देखते हैं कि ये बजट किस नौयत का होगा और इसमें क्या इन लोगों के मुतालबात सुने जाएंगे या नहीं सुने जाएंगे। इससे पहले भी हम एक मरतबा इस हवाले से प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने पेंशनर्स के और सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को उजागर किया था और आज एक बार फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जहाँ पर मेरे साथ पेंशनर्स भी मौजूद हैं और सरकारी मुलाजमीन भी मौजूद हैं। इनकी आवाज़ हम आप तक पहुँचाएंगे और जानेंगे कि इनको क्या मुश्किलात हैं जो दरपेश हैं और इनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं।